اور عزیزو یسوع کی خالی قبر تسلی کا پیغام ہے کہ اب وہ مرا ہوا نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یسوع کی خالی قبر ہمیں ایک خوشخبری دیتی ہے کہ اب ہمیں کسی مردہ کے پاس جا کر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت نہیں، کسی قبر پر جس میں کوئی دفن ہے اس پر جا کر کینڈلز جلانے کی ضرورت نہیں، چادریں چڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا مسیح زندہ ہے۔ یسوع مسیح زندہ ہے، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے اور ریما اسمبلیز کی طرف سے عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ میں شکر کرتا ہوں خداوند یسوع کا جس نے مجھے موقع دیا کہ آپ سب کے درمیان خداوند کے زندگی بخش کلام کی منادی کروں، اور ایس پی ایس بائبل ٹی وی کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آپ سب کے درمیان خداوند کا کلام بانٹ سکوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور آج جس ٹاپک کو میں آپ سب کے درمیان شیئر کر رہا ہوں وہ ہے مسیح کی خالی قبر۔ مقدس مرقس کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 16 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لیں تاکہ آ کر اس پر ملیں۔ وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر منہ پر سے کون لڑکائے گا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو جو سفید جامہ پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی۔ اس نے ان سے کہا، ایسی حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی، کیونکہ لرزش اور ہیبت ان پر غالب آ گئی تھی، اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہودی جو ہے وہ اپنی روایت کو پورا کر رہے ہیں، اور لازر کو بھی اسی طریقے سے پٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور منہ پر رومال ہے اور اس کو دفنایا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی، مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی جو ہیں، وہ یسوع کو خوشبودار چیزوں کو اس پر ملنے آئی ہیں اور اس کی قبر پر آئی ہیں، اور راستہ میں وہ یہ بات سوچ رہی ہیں کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سے ایسے پتھر ہیں جو ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھ چھوڑے ہیں، اور آج بھی بہت سے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، اس کو کون کرے گا، یہ کب ہوگا، یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ لیکن
जैसे ही हम ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तो ये पत्थर हमारी जिंदगी से हटना शुरू हो जाते हैं, हमारे जहनों से हटना शुरू हो जाते हैं, और हम उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हैं जो हमारी जिंदगियों के लिए खुदा ने रख छोड़ी हैं। ये खवातीन भी जो यीशु के लिए बहुत ज्यादा इज्जत और अकीदत रखती हैं, ये खवातीन भी जो सुबह सवेरे उठी हैं और उन्होंने खुशबूदार मसाले लिए हैं ताकि यीशु के बदन पर जाके, उसकी लाश पर जाके मलें, ये भी सोच रही हैं कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा। अभी ये वहां पर पहुंची नहीं है, अभी ये रास्ते में ही है। हम भी बाज़ औक़ात ऐसे काम जिनको हम करना चाहते हैं, जो अभी मुस्तकबिल में हमारा प्लान होता है, लेकिन इब्लीस जो है वो बहुत से पत्थरों को हमारी जहनों में, हमारी सोचों में लाकर, हमारी राहों में लाकर खड़ा कर देता है, और हम सोचते हैं कि इनको कौन हटाएगा, हम सोचते हैं कि ये काम कैसे मुमकिन हो सकता है, हम कैसे इस काम को कर पाएंगे। और बहुत से ऐसे सवाल, बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा लेने से डरते हैं और वो सोचते हैं कि शायद बपतिस्मा लेने से और अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देने से हम पता नहीं किस तरह के हो जाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, ये इब्लीस के हथियार हैं जो हमारी जिंदगी में है, वो हमारी सोचों, हमारे ख्यालों में ऐसी रुकावटें डालता है ताकि हम अपने आप को मसीह के ताबे न कर सकें। हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है और इन तमाम पत्थरों को अपनी जिंदगी से, अपने जहन से, अपनी सोचों से हटाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो वो आपकी जिंदगी के तमाम पत्थरों को आपकी जिंदगी से, आपकी बिजनेस से, आपकी फैमिली से हटा देने की कुदरत रखता है। वो आपकी राहों को हमवार कर देता है। कलाम में लिखा है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरे मुहाफिज हों। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। खुदा इस कदर आपकी फिक्र करता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें यीशु पर ईमान रखने की जरूरत है, हमें यीशु पर भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि वही है जो हमारे लिए इन तमाम पत्थरों को हटा देगा। लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची तो पत्थर हटा हुआ था। वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु बाहर आए, बल्कि इसलिए हटाया गया कि हम अंदर जाकर देखें कि यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत बात है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें एक शख्स बाइबल में ऐसा मिलता है जिसने यीशु मसीह के सामने आकर गिड़गिड़ा कर कहा, मेरी कम एतकादी का इलाज कर। आज कितने हैं जो हम में से ये बात कहते हैं कि मसीह यीशु मेरी कम एतकादी का इलाज कर, क्योंकि हमें कलाम के वसीला से ये बात पता चलती है कि जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हमें इत्काद रखने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह पर ईमान रखने की जरूरत है, ताकि हम खुदावन की हजूरी में और उसकी बादशाही में बढ़ते चले जाएं। अगर हम 5 आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, और कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक जवान को सफेद जामा पहने हुए दाहिनी तरफ बैठे देखा और नहायत हैरान हुई। उसने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो। हालेलुया। जब वो कब्र के अंदर गई तो एक फरिश्ता उनको मिला और उसने कहा, ऐसी हैरान मत हो, क्योंकि जो यीशु नासरी को तुम जिसको ढूंढती हो वो जी उठा है। हालेलुया। और अजीजों, यीशु की खाली कब्र तसल्ली का पैगाम है कि अब वो मरा हुआ नहीं बल्कि जी उठा है। यीशु की खाली कब्र हमें एक खुशखबरी देती है कि अब हमें किसी मुर्दा के पास जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं,
किसी कब्र पर जिसमें कोई दफन है उस पर जाकर कैंडल्स जलाने की जरूरत नहीं, चादरें चढ़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की खाली कब्र तसल्ली का पैगाम देती है। यीशु मसीह की खाली कब्र उसके जिंदा होने की निशानी है। दुनिया में बहुत सी कब्रें हैं जो मशहूर हैं, और वो इसलिए मशहूर हैं कि उनमें मशहूर शख्सियात दफन है। लेकिन यीशु मसीह की कब्र दुनिया में वो वाहिद कब्र है जो इसलिए मशहूर है कि वो खाली है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशखबरी की बात है, कितनी कदर खुशाइन बात है कि हमारे यीशु की कब्र खाली है और वो जिंदा है। हम जिंदा की प्रस्तिश करते हैं। हम ऐसे खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो हमारी दुआओं को सुनता है, हमें देखता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के जी उठने का पैगाम सबसे पहले खवातीन को मिला, उन खवातीन को जो खिदमत करने गई। मेरे अजीजों, जब आप यीशु मसीह की खिदमत करेंगे तो आपको पैगाम मिलेगा। आपको पैगाम मिलेगा, वो पैगाम जो खुदा आपको देना चाहता है, ताकि आप भी उन खवातीन की तरह जाकर मुनादी कर सकें, ताकि आप भी उस खुशखबरी को जो पैगाम की सूरत में आपकी रूह में डाली जाती है दूसरों को सुना सकें। ये बहुत जरूरी है कि हम यीशु की खिदमत करें, ताकि उसकी आवाज को हम सुने, उसका पैगाम हम रिसीव करें और बहुत सी रूहों को जीतने का बाइश बने। यीशु मसीह की खाली कब्र इस बात की गवाही है कि जो कुछ उसने कहा वो पूरा किया। यीशु मसीह की खाली कब्र मौत पर फतह की गवाही देती है। यीशु मसीह की खाली कब्र हमेशा की जिंदगी में दाखिले की जमानत है। यीशु मसीह की खाली कब्र उसके जिंदा होने की गवाही है। यीशु मसीह की खाली कब्र बाप से फिर मिलाप की शहादत है। यीशु मसीह की खाली कब्र बादशाही में जाने की खुशखबरी है। यीशु मसीह की खाली कब्र उसके कुवत, उसकी कुदरत और इख्तियार की निशानी है। यीशु मसीह की खाली कब्र इब्लीस के सर को कुचलने की अलामत है। यीशु मसीह की खाली कब्र हमारे लिए तसल्ली का बाइश है कि एक दिन हम भी उसके साथ बादशाही में जाकर उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की खाली कब्र हमें तसल्ली का पैगाम देती है। यीशु मसीह की खाली कब्र हमें दलेरी देती है इस बात की कि हम किसी मुर्दा की प्रस्तिश नहीं करते, बल्कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जानें कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों से क्या कहता है। खुदा आज आपको इस बात के बारे में कह रहा है कि आप उस पर ईमान रखें। आज आप उसकी खाली कब्र पर गौर करें, आज आप उसके कलाम पर गौर करें, क्योंकि खुदा का कलाम आपको कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी और भेद की बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। पौलुस जो है वो तीमुथियुस को कहता है कि जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर। हमें उस बात पर गौर करने की जरूरत है जो खुदा कहता है। जो मैं कहता हूं उस पर गौर कर, क्योंकि खुदावन तुझे सब बातों की समझ देगा। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो खुदा का कलाम पढ़ें, खुदा के कलाम पर गौर करें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात के बारे में बात करते हैं कि खुदा की मर्जी हमारे लिए पता नहीं क्या है, खुदा की मर्जी हमारे खानदान के लिए पता नहीं क्या है। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी खुदा का कलाम है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा की मर्जी को जानते हैं। ये खुदा किस कदर हमसे मोहब्बत करता है, खुदा वो कौन से मकसद हैं जो हमारी जिंदगी के वसीला से पूरा करना चाहता है। यीशु मसीह के पास आ जाए, उसने आपकी खातिर अपनी जान दी। अब वो मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और अब्दुल बाद जिंदा रहेगा, और बल्कि मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा जब हम उस पर ईमान रखेंगे, जब हम उसकी जिंदगी को अपनाएंगे, जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो हम बादशाही का हिस्सा बनेंगे। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको बरकत दे। आमीन।